नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है एमसीक्यू नेट एनडीए नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू है, ये मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये आज का हमारा सेट 1 होगा। ठीक है, जिसमें आपका टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हमारा मॉक टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर 1। ठीक है, M1। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो वन करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 1 and 2 आर राइट। ठीक है, तो आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड नो पर्सन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once, and no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself। तो दोनों आपका सही है। ठीक है, कोई आपका 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्शन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर है ओनली 1 इज राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द legislative assemblies of states are to be held on the basis of universal adult franchise। ये आपका सही है। और सेकंड आपका, the constitution stipulates that there will be a separate electoral rolls for parliamentary and state assembly election। ये आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 3 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जोनल काउंसिल हैज बीन, तो जोनल काउंसिल हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत है। और देयर इज अ प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल, सही है। और द यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन नॉमिनेटेड टू बी द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल। ठीक है, आपका दोनों सही है। नंबर 4 है, द पार्लियामेंट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो 4 का ऑप्शन सी ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टैम्प। तो द पार्लियामेंट डज नॉट हैव exclusive power to make any law with respect to which one of the following subject, option number C trade and commerce in food stuff। Number 5 which of the following statement are correct in relation to the legislative procedure regarding bills in the parliament। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका तीनों सही। ठीक है, तो a bill pending in the parliament shall not lapse by reason of prorogation of the houses। a bill pending in the council of state which has not been passed by the house of the people shall not lapse on dissolution of the house of the people। A bill which is pending in the house of the people or which having been passed by the house of the people is pending in the council of state shall subject to the provision of article 108 with joint sitting of both house lapse on discussion of the house of people। ठीक है, आपका ये तीनों सही है। ठीक है, तो ये बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट shall not lapse by reason of prorogation of houses, and a bill pending in the council of state which has not been passed by the house of the people shall not lapse on dissolution of the house of the people। ठीक है, और आपका तीसरा भी सही है, बिल which is pending in the house of the people or which having been passed by the house of the people is pending in the council of state shall subject to the provision of article 108 lapse on discussion of the house of the people। Question 6 है, which one among the following, तो which one among the following is the distinguishing factor between a pressure group and a political party। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी, pressure group do not seek active political power while political parties do। ठीक है, तो which one among the following is distinguishing factor between pressure group and political party। तो pressure group does not seek active political power while political parties do। Question 7 है, assertion और reason आ रहा है। तो assertion ये कह रहा है, no criminal proceedings can be instituted against the governor of a state in any court during his tenure of office। reason आ रहा है, there is a provision under the constitution of India for such protection to the governor of a state। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका आर जो है सही एक्सप्लेन किया हुआ। तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस, एंड देयर इज अ प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर सच प्रोटेक्शन टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। क्वेश्चन 8 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो 8 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आर राइट। आपका 1 2 3 4 सही है। ठीक है, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर है लोकल टैक्सेस ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम रेम्यूनरेटिव इंटरप्राइजेज एंड टैक्स शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसर्न। आपका 4 सही है।
तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम लोकल टैक्सेस, ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इनकम फ्रॉम रेम्यूनरेटिव इंटरप्राइजेस एंड टैक्स शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसर्न। क्वेश्चन 9 है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया a new all India service can be created if, so 9 correct answer option number A, the Parliament of India enacts a law by a special majority prescribed under article 312 of the Constitution। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 समझाना। तो लिस्ट 1 आपका नेम ऑफ द रिट और इशूड फॉर, तो 10 का जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी 2413। ठीक है, मैंडेट समझा, टू कमांड ए पर्सन टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी, प्रोविजन ऑफ द फॉरबिडिंग द इंफीरियर कोर्ट इन एक्सेस ऑफ इट्स जुरिडिक्शन, और सर्क्यूलरी हो जाएगा टू क्रैश द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, और क्यू वारंट हो जाएगा सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द assertion of public offense। ठीक है, तो सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द assertion of public offenses। ठीक है, ये आपका है नेम ऑफ इट और इशूड फॉर, किसके लिए ये इशू किया था। ठीक है, तो मैंडेमस टू कमांड ए पर्सन टू परफॉर्म हिज लीगल ड्यूटी, प्रोहिबिशन फॉरबिडिंग द inferior court in excess of its jurisdiction, and certiorari to quash the order of the tribunal, and quo warranto safeguarding against the usurpation of public offices। तो 11 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 है राइट। आपका 11 का सी है 2 and 3। तो द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन इट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और तीसरा आपका द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस विच आर टू बी डिवाइडेड इन बिटवीन देम। ठीक है, आपका 2 और 3 सही है। ठीक है, और पहला गलत है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, सही, ये आपका गलत है। ठीक है, द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन इट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस विच आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम। 12 नंबर है, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन बी अमेंडेड बाय। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए सिंपल मेजॉरिटी इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नंबर 13 नंबर है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी ओनली वन इज राइट। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी विच द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा इज वन ऑफ द मेंबर, ये आपका सही है। द हेडक्वार्टर ऑफ द चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज एट बेंगलुरु, ये आपका गलत है। 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट हेड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई डिड नॉट हेड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी आपका आई गुजरात चंद्रशेखर एंड बीपी सिंह हेड ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट। ठीक है, 15 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पंचायत, होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। एंड फोर्थ आपका गलत है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस गलत है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू पंचायत, होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन एट रेगुलर इंटरवल एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी। कुछ आपका 16 है, which article of the constitution empowers the parliament to legislate on matter of the state list in the national interest। तो which article of the constitution empowers the parliament to legislate on a matter of the state list in the national interest। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 249। ठीक है, 17 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 का एडजॉर्नमेंट इज ए शॉर्ट रिसेस विद इन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑर्डर्ड बाय द presiding officer of the house। statement 2 आपका when the presiding officer adjourns the house without fixing any date or time of the next meeting of the house, it is known as adjournment sine die। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी both the statement are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1। ठीक है, तो adjournment is a short recess within the session of the parliament ordered by the presiding officer of the house, and when the presiding officer adjourns the house without fixing the date or time of the next meeting of the house, it is known as adjournment sine die। ठीक है,
क्वेश्चन 18 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो 18 का ऑप्शन होगी 2 और 3 आपका सही है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है और आपका पहला गलत है। टू ऑवे एलिजियंस टू द नेशन एंड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपका पहला गलत है और 2 और 3 सही है। तो 19 है द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द ऑप्शन नंबर सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। क्वेश्चन 20 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो 20 का ऑप्शन नंबर 1 2 3 है आपका तीनों सही है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रैक्टिकल। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ग्रांटेड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रांटेड ओनली टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द advisory jurisdiction of the Supreme Court are correct। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 4 are right। ठीक है, तो which of the following statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court are correct। तो the opinion of the Supreme Court may be sought by the President on any question of law or fact, and advisory jurisdiction of the Supreme Court can also be exercised over dispute arising out of references made over pre-constitutional treaties। ठीक है, ये आपका दोनों सही है। ठीक है, और आपका 2 और 3 गलत है। तो इन केस द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज सॉफ्ट इट इज बाउंड टू गिव इट एंड द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ऑन ए मैटर रेफर टू इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। दिस इज द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो ये आपका 2 और 3 गलत है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 मिला है। तो लिस्ट 1 आपका पॉलिटिकल इवेंट है और लिस्ट 2 आपका टुक प्लेस इन। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 1 3 4 आज राइट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी 1980 और एक्सेप्टेंस ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट तो 1990 और फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन एन इंडियन स्टेट तो 1957 एंड पासिंग ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये आपका 1976। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी 1980 में, एक्सेप्टेंस ऑफ द मंडल कमीशन रिपोर्ट 1990 में, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन एन इंडियन स्टेट तो 1957 में और पासिंग ऑफ द 42nd अमेंडमेंट 1976 में। 24 है अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ लेजिस्लेटर attract disqualification under the 10th schedule तो 24 का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 all are right। तो अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ legislator attract disqualification under the 10th schedule of if he voluntarily gives up the membership of the party on whose ticket he was selected and he votes or abstains from voting contrary to any direction issued by his political party. A nominated member joins any political party after 6 months. A member who has been elected as an independent member joins any political party. तो ये आपका 4 रीजन है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का जिसमें आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन होता है 10th शेड्यूल का अकॉर्डिंग। तो ही voluntarily gives up the membership of the party on whose ticket he was selected. He votes or abstains from voting contrary to any direction issued by his political party. A nominated member joins any political party after 6 months. A member who has been elected as an independent member joins any political party. 25 what is the procedure required to be followed for the abolition of an existing legislative council in a state? तो 25 का ऑप्शन में the Rajya Sabha must pass a resolution to that effect. So what is the procedure to be followed for the abolition of an existing legislative council in a state? The Rajya Sabha must pass a resolution to that effect. तो इस पर इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2 and 3 आर राइट। ठीक है,
तो इसका 2 and 3 सही होगा। तो व्हाट इज द प्रोसीड्यूर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर द एबॉलिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो इसका राइट आंसर था 2 and 3, ठीक है। तो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट पास ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सही है। और पार्लियामेंट मस्ट इनैक्ट ए लॉ अबॉलिशिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका सही है। द राज्यसभा मस्ट पास ए रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, गलत है। और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट पास ए रिजोल्यूशन विथ एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी एज इन द केस ऑफ ए बिल, ये आपका गलत है। तो 2 और 3 आपका सही है, ठीक है। 2 and 3 राइट, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो। तो आज की बस इतना ही। कल हम आपका मॉक टेस्ट नंबर मॉडल टेस्ट पेपर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।